Hello everyone, welcome you all to the channel of Avyan IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce, and आज हम पढ़ने वाले हैं the most interesting topic from HRM is collective bargaining and workers participation in management. So ये जो portion है that is common in both the papers, management and commerce, right? So today we are going to understand that what are industrial relations, how it get convert into grievances and उसके बाद वो disputes पे convert होते हैं. So what are the measures we take as preventive and settlement, right? So why I have taken this topic importantly for today's video is like when I was going through the previous year questions, so I saw that this is one of the topic जिसमें से कि बहुत ज़्यादा number of frequently questions been asked, right? So I just wished that my learners must really know the concept very clearly because the concept is really very easy. So without getting delayed, let's get started. So we are going to study in a flow chart that how this actually starts from industrial relations, कौन सी parties इसमें involve होती हैं, grievances क्या होते हैं, and then how it converts into a dispute, right? So the topic is industrial relations, right? So industrial relations क्या होते हैं? So it is talking about the good relations जो एक अच्छे terms होते हैं between employer and employee, So एक ये integrated approach होती है, ये एक integrated integratedly ये देखा जाता है that how employees and employers are happily working towards achieving the goals and objectives of the organization, right? So एक ऐसा relation जिसमें कि both are inclined towards each other's welfare, right? Employer is concerned that how he can make the employees happy, and even employees are concerned that how can he be more productive, how can he contribute in achieving the maximum objectives of the organization, right? But this may not be the case when it is actually it may not be the case in practical also, and in actual when the two parties of different mindset clashes, right? There may be cases जहाँ पे कि on the basis of the terms of employment, on the basis of क्या हमारी working conditions हैं, on the basis of हमारी job security, on the basis of pay, remuneration, on the basis of other related employment terms के basis पे हमारे employee या employer के side grievances arise हो सकते हैं, right? So now we can understand like what are the different ways और मे बी मेथड्स जिसमें कि हमारे ग्रीवेंसेस हो सकते हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. सो ग्रीवेंस इज व्हाट? ग्रीवेंस इज एनी ऑफ द प्रिवेलिंग टेंशन, एनी ऑफ द कंप्लेन और एनी ऑफ द डिस्कम्फर्ट दैट इज प्रिवेलिंग इन एनी ऑफ द पार्टीज, एम्प्लॉय के उस माइंड में या एम्प्लॉयर के माइंड में, राइट? वो किसी भी वजह से हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसिप्लिन, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशंस, right? So it may be because of poor relations with the supervisor, right? ये इस वजह से भी हो सकता है. It may be because of the poor management policies. It may be because of leave. It may be because of pay, it may be because of any other factors related to employment terms, right? So किसी भी चीज़ को लेकर के एक organization में तनाव create हो सकता है, that may be termed as grievance, right? जब हमारा जो relation है between employee and employer उसके बीच में थोड़ी सी भी खटास आने लगे, थोड़ा सा भी तनाव बनने लगे किसी भी एक या दो और ज़्यादा factors को लेकर के, that will termed as the grievances, राइट? सो टू जस्ट टेल यू और टू मेंशन यू कि हम ये आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं. सो देयर इज एंटायर डिफरेंट मेथड जिसमें कि मैनेजर्स ये स्टडी करते हैं दैट व्हाट आर द ग्रीवेंसेस इन द माइंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कैसे हम ग्रीवेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं. दैट मीन्स हम ग्रीवेंसेस को, प्रिवेलिंग ग्रीवेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? उसमें ग्रिप बॉक्स आता है, वी हैव ओपन डोर पॉलिसी ऑल्सो, वी हैव एग्जिट इंटरव्यूज, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली,
राइट, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ग्रीवेंस में क्या होता है बेसिकली, हमारे किसी भी एक दो या ज़्यादा इश्यूज को लेकर के खटास पैदा हो सकती है बिटवीन, तनाव बन सकता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. इट कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिस वजह से वो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, राइट. मे बी डिसमिसल ऑफ an innocent worker, maybe not giving the up to mark working conditions, not having a supportive working supervisors, not having a supportive management, not having good structure in the organization, right. So कुछ भी हमारा वो reason हो सकता है जिसकी वजह से हमारा grievance arise हो जाए. So if the grievances are not handled, are not tackled, are not addressed over a long period of time, that may convert or may become a big concern for the organization and termed as dispute, right. जैसे हम बहुत normally सुनते हैं that their property disputes are there in between two brothers, right. What is dispute then? So how will we make a difference between grievance and dispute? एक grievance होता है जो एक छोटा मोटा तनाव हो सकता है दो पार्टीज के बीच में. अगर वो तनाव एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक अगर वो कैरी होता है, राइट, जिसमें कि आफ्टर अप्लाइंग सो मैनी वेज दे आर नॉट कमिंग एट अ म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक म्यूचुअल डिस्कशन पे नहीं आ रहे हैं, दैट मे टर्म इनटू कन्वर्ट इनटू अ बिगर डिस्प्यूट, राइट. जैसे हम बहुत नॉर्मली सुनते हैं दैट देर आर प्रॉपर्टी इशूज, देर आर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन टू ब्रदर्स, राइट. सो वाई दिस इज नॉट अ ग्रीवेंस, ये डिस्प्यूट क्यों होता है? बिकॉज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द इशू इज नॉट गेटिंग सेटल्ड, दैट इज वाई वो एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो गया है. सो नाउ वी विल स्टडी दैट हमारे दो मेजर्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ द डिस्प्यूट. सो वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स एंड देन वी हैव सेटलमेंट मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सेटलमेंट मेजर्स, एज द नेम सजेस्ट, प्रिवेंटिव, जब हम कोई चीज़ के होने से पहले ही उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको पहले से ही प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो चीज़ ना, वो कंडीशन ना प्रिवेल करे, राइट. एंड सेटलमेंट मेजर्स या मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल जब वो चीज़ हो चुकी है, डिस्प्यूट हो चुका है, देन हम उसको कैसे टेक केयर कर सकते हैं, राइट. सो बेस्ट मेथड की अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स हम अगर मान लीजिए हमें दिख रहा है, मैनेजमेंट को दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि देयर आर सम ग्रीवेंसेस दैट आर अकरिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, राइट. एंड मैनेजमेंट कुड सी दैट ये एक बड़े डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता है. सो व्हेन वी कैन गो थ्रू द मेथड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, उसके क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसके अंदर टाइप्स क्या आते हैं, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, राइट. To make you clear at this point, I will tell you कि collective bargaining as the name suggests, bargaining procedure होता है collectively both the parties when they sit together, right. Collective bargaining when the conditions, जो employer की terms and conditions हैं they put forward, जो employer के terms and conditions they put together, and एक mutual agreement पे आया जाता है, negotiation पे आया जाता है, and then a basic, एक mutual कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट तैयार होता है वेयर इन बोथ द पार्टीज फाइंडिंग देमसेल्व्स एट विनिंग सिचुएशंस, राइट. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेथड है when we could see that there is grievance occurring, or there is a grievance prevailing between the employer and the employee. So उनके बीच में उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वेरी हेल्दी मेथड दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गो और ऑप्ट फॉर, राइट. उसके बाद आता है कि जब हमारा डिस्प्यूट हो चुका है तब हम क्या कर सकते हैं, राइट. सो देर आर 3 ways वी कैन गो विद. फर्स्ट इज कंसिलिएशन, सेकेंड इज आर्बिट्रेशन एंड थर्ड इज एडजुडिकेशन. Again, I will mention that these 3 are really very important from the exam point of view. NTA, UGC NET, Commerce and Management both. NTA is one of the favorite topic is this, from where they will ask you a direct definition and they'll ask you which of the following is the conciliation, arbitration or the adjudication, right. All right, so conciliation क्या होता है? Conciliation is basically that both the parties, they will have one neutral party, एक मीडिएटर होगा. दैट मीडिएटर विल लिसन टू द डिस्प्यूट ऑफ जो दोनों पार्टीज के बीच में जो भी डिसअग्रीमेंट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, दैट द पर्सन विल लिसन टू इट एंड उसके बाद ही विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड विल ट्राई टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज एट अ म्यूचुअल डिस्कशन, right. So what this person does, this person tries to persuade them,
and that is why this person is also known as mediate. This process is also called as mediation, and the person is called as mediator. Point to be noted here, and how this is different from the other two methods is that यहाँ पर जो person होता है, that person just gives a suggestion. वो person जो है वो सिर्फ influence कर सकता है दोनों parties को, वो सिर्फ कोशिश कर सकता है कि दोनों parties एक mutual discussion पर आए. He cannot give any of the judgments कि वो जाकर के binding हो on both the parties, right? So this is what conciliation is. Then comes arbitration. Arbitration, is entirely same is that of conciliation. बस इसमें difference ये होता है कि जो हमारा arbitrator होता है वो एक judgment देता है, which is even binding on both the parties, right? So what is the difference that we have drawn between the conciliation and arbitration? Conciliation में वो जो mediator है वो सिर्फ suggestion दे सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, and mutually आप इस agreement पे आ सकते हैं so that ये जो dispute है यहाँ पर settle हो जाए, right? So many a times अगर हम property disputes की भी बात करते हैं, which is of course not an industrial dispute, but just to give an example, कि कई बार क्या होता है जो फैमिली के अदर मेंबर्स होते हैं दे कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ मीडिएटर. दे विल सिट, दे विल लिसन टू द डिस्प्यूट्स ऑफ द टू ब्रदर्स, एंड वो क्या करेंगे, वो एक एक सजेशन देंगे, अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं म्यूचुअली, राइट? बट द मीडिएटर हैविंग नो राइट्स कि वो जजमेंट सुनाए, नहीं आपको प्रॉपर्टी इतना देना है या आपको इतना पार्टीशन देना है, नो. Who can do that is the arbitrator. Arbitrator कौन होता है? जो दोनों पार्टीज की disputes को सुनता है, disagreements को सुनता है. This is a neutral party. Arbitration में क्या होता है? There is a neutral party. So there is a neutral party जो क्या करती है? Judgment provide करती है to the disputing parties, right? अब आता है, मान लीजिए अगर दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज अग्री हो जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, दैट दे विल फॉलो द जजमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्टिल डिससैटिस्फाइड एंड दे वांट कि उनका मैटर आगे जाए बिकॉज बोथ द पार्टीज आर नॉट सैटिस्फाइड. व्हाट दे विल डू, दे विल गो फॉर एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन क्या है? एक लीगल प्रोसीजर है, राइट? दिस इज अ लीगल प्रोसीजर जिसमें कि हम क्या करते हैं, अ फाइनल रिसोर्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, राइट? दिस इज अ लीगल प्रोसीजर जिसमें कि वी गो, हमारे पास 3 होते हैं. हियर वी हैव लेबर कोर्ट्स टू मेंशन, वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, and last we have here is national tribunal, right? So ये हमारी ना bodies होती हैं which are at the local level, maybe at the labor representatives के लेवल पर, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, who are there to listen to the parties and उनको एक लीगल जजमेंट देने के लिए they are there, राइट? सो एडजुडिकेशन में क्या होता है, जब हमारा जो डिस्प्यूट होता है बहुत ज़्यादा ही एक्सपैंड हो जाता है तो गवर्नमेंट सजेस्ट करती है दैट नाउ यू शुड गो फॉर द लीगल प्रोसीजर. एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू आपको प्रोसीड करना चाहिए. जो भी जजमेंट्स होंगे देन यू कैन proceed with it. So इसमें हमारे 2 ways होते हैं. We have voluntary adjudication and compulsory adjudication. जब हमारी disputing parties का consent होता है कि हाँ ठीक है, we will go collectively for the adjudication process, हम एक legal procedure से proceed करना चाहते हैं, that becomes our voluntary one. कंपल्सरी में क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट मेक्स इट कंपल्सरी एंड इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज वो उसको रेफर करती हैं फॉर फर्दर लीगल प्रोसीजर्स एंड एडजुडिकेशन, राइट? एंड यहाँ पर जो हमारा डिसीजन होता है दैट इज ऑफ कोर्स लीगली बाइंडिंग. सो जो भी हमारा डिसीजन आता है दैट बोथ द पार्टीज हैज टू फॉलो, राइट? So I think this topic was made really very easy for you guys. I hope you got all the terms, are able to make the difference between them. I'll repeat the 3 terms again. Conciliation में क्या होता है, हमारा mediator होता है who tries to influence the disputing parties. एक mediator होता है conciliate करता है वो, that जो भी वो suggestion दे रहा है that उससे इन्फ्लुएंस होके मे बी म्यूचुअली एक अग्रीमेंट पे बोथ द पार्टीज में कम, राइट? देन आता है हमारा आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि आर्बिट्रेटर ट्राई करता है
दोनों की पार्टीज को, एक न्यूट्रल पार्टी होता है, दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज के इशू को सुनता है एंड ट्राइज टू गिव अ जजमेंट, राइट। एंड देन फाइनली आता है हमारा एडजुडिकेशन, जिसमें कि गवर्नमेंट सजेस्ट करती है टू द डिस्प्यूटिंग पार्टीज कि आप अब लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू प्रोसीड कीजिए टू गेट एन एंड टू दिस डिस्प्यूट, जिसमें हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं। वी हैव लेबर कोर्ट्स, वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड देन वी हैव नेशनल ट्रिब्यूनल्स, right? So I hope this was you liked the video. This was all from the industrial relations and industrial dispute. To mark it again, it is covered under Industrial Dispute Act 1947. Stay tuned. If you want to have videos like that, do let us know in the comment section. Thank you so much.